or something else? So I'm very interested in your response, Didi. Actually, whatever you said, everything is right. Some way. The main reason, as Maharaji also described many times, that the main reason of depression is wrong thinking. You can say negative thinking. You know, whenever you are alone and you feel like I love this person and he does not love me, or anything happens which is against your will, then if you start thinking against, the negative thinking is the main cause of depression. Didi, I don't mean to interrupt, but not depression, anxiety. So anxiety is feelings of fear. Like now with COVID, so many people have anxiety. They're nervous. That's They're what I'm saying. afraid. Yeah. See, the Say result, if you know the philosophy, it. then you know that all kind of happiness and miseries, they Mhm, come according to your destiny. mhm, mhm, Prahlad ji said in Bhagavat, Sukha daitya deha yogena dehinam. Sukha all kind of sukh, all kind of happiness comes according to your destiny. And yatha dukha mayatnatah, and dukh, all kind of dukh, the miseries also come according to destiny. Who wants mhm, to get the miseries? But we get it. In the same way, when we have happiness, then we don't blame anyone. There's no anxiety, there's no problem at all. But when the other kind of destiny comes in our life and we get some miseries, then we blame each other or we blame God. That is wrong kind of thinking. If we know one thing only, there's a very beautiful verse in Bhagavad. The Bhagavad says that a devotee should do only, there are three, four things. If you are doing those things, then you will never have the anxiety. Number one, tattenukampam susamikshmamano bhunjanamevatmakritam vipakam. The meaning of this line of Bhagavad is, number one, tatte Nukampam Susamishramano. Whenever any kind of anxiety, any kind of cause of misery comes in your life, you should wait. Why? What should we wait? That after that, something good is going to be happening. Like mhm, all the time after night, the day comes. mhm, In the same way, we think that something is happening which is bad. It's not bad. We are just undergoing the fruit of our destiny. So wait. And there is the grace of God behind it. So anukampam susamishmamano means wait for his grace. If mhm, anything happening which is not, it is very much disappointing or uh, distressing, don't be disappointed. Wait, something good is going to happen. So tattenu kampam samishmamano. And then bhunjana mevatmakritam vipakam. Number two, whatever sukh or dukh is coming in your life, feel that this is your destiny. It is the fruit of our own actions, and we have to undergo it. So, without being upset or distressed, we should know that I have to undergo it. Either you undergo with happiness or with distress, you have to. So, we should not be uh, upset about it. And number three, Hridvag Vapurvir, we are supposed to
be surrendered to God all the time. Hid Vak Vapurbi means by heart, by words, and by body. We should think about God. If you are doing all that, then there's no doubt that you will attain the grace of God. But if we are giving undue importance to small things, because sukh and dukh, happiness and miseries, they come to everyone without any invitation. But most of the time, bad time is not with us. But most of the time we are good, we're happy. Sometimes when the time of miseries come, then we get upset. So it is our negative thinking and lack of surrender as well. We should pay attention to what Maharaj Ji said about it. So any misery, in fact, is not a misery. It's a grace of God because we are finishing those bad sanskar in that way. Because we are undergoing the fruit of those. Now we will be free from those things and now we'll get the better result of it. Is there anything else? Okay. No, that's very helpful. Thank you, Didi. You're welcome. Thank you, Didi. So the next person is Garima. Garima Di, if you would please unmute yourself and put your camera on and ask the question. Garima Joshi. राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी श्री महाराज जी ने एक प्रवचन में बोला है कि कई बार जैसे जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ नहीं होते थे तो उनको विरह की अनुभूति होती थी, पर कई बार जब वो श्री राधा कृष्ण के साथ भी होते थे तो मिलन में भी विरह की अनुभूति होती थी। इसके विषय में आप कुछ बता सकती हैं? हाँ, मैंने उस दिन भी बताई थी ये बात। ये जो मिलन में भी विरह की अनुभूति होती है, गोपियों को नहीं, ये श्री राधा को होती है। इसको दिव्योन्माद कहते हैं। और मैंने बहुत अच्छी तरह से दिव्योन्माद के विषय में बताया था। आप दोबारा सुन लीजिएगा वो लेक्चर। उनको जो मिलन में विरह की अनुभूति श्री राधा को होती है, मोहन अवस्था में। मोहन, ठीक है दीदी, थैंक यू। राधे राधे दीदी जी। राधे राधे। दीदी जी, मेरा क्वेश्चन है कि वो जो सुभद्रा थे वो देवकी के 9th चाइल्ड थे, या वो जब योग माया शक्ति आए थे एक्सचेंज करके और वो जो विलोप लाइक डिसअपियर हो गए थे वो थे? सुभद्रा अलग अलग चीजें हैं, दो को एक साथ क्यों जोड़ रहे हो? कोई कनेक्शन नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, तो दीदी वो सुभद्रा जी के बारे में कुछ बताओ ना, कि वो उनकी बहन के बारे में हम क्यों बताएं? हम राधा के बारे में क्यों नहीं बोले सीधे? अच्छा, और दीदी बहुत थोड़ा टाइम है, हम राधा कृष्ण की बात करेंगे, अभी सुभद्रा रुक्मिणी की बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है दीदी। और दीदी एक दूसरा क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि जितना तुम प्यार करोगे उतना प्यार रिटर्न करना पड़ेगा। तो जैसे राधा रानी उनको एक्सट्रीमली प्यार करते हैं, वो मादनाख्य महाभाव तक का लेवल का वो प्यार करते हैं। तो श्री कृष्ण वो वहां तक, आपने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि वहां तक पहुंच नहीं पाते श्री कृष्ण, तो क्या उनके पास इतना प्यार? श्री कृष्ण ने ये कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझसे जितना प्रेम करता है और जिस भाव से प्रेम करता है, मैं उससे उसी भाव से प्रेम करता हूँ। श्री राधा का जो मादनाख्य भाव है
वो उनका भाव है ऐसा नहीं। श्री राधा ही मादनाख्य है। ये जो मादन है उसी का दूसरा नाम श्री राधा है। श्री राधा के अंदर कोई मादन नाम का भाव आया ऐसा नहीं। वो प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है। राधा और कृष्ण दो पृथक पर्सनैलिटीज नहीं है। ये यम राधा यश कृष्णा कसाब्धिर देहे नैक क्रीडनार्थम द्विधाभूत। वो तो लीला करने के लिए श्री कृष्ण ने ही अपनी प्रेमा शक्ति को साकार रूप दिया। वो शक्ति है श्री कृष्ण की, और सबसे ऊंची शक्ति, ऐसी शक्ति जिसके अंडर में स्वयं भगवान रहते, उस शक्ति को उन्होंने साकार रूप दे दिया। और उसी शक्ति का नाम, जो हाईएस्ट शक्ति है, उस शक्ति में भी जो सबसे ऊंचे स्तर की शक्ति है, उसका नाम मादन है, उन्हीं का नाम श्री राधा है। तो भगवान ने स्वयं ही अपनी शक्ति को अपने से पृथक किया हुआ है। श्री राधा के तो श्री कृष्ण अधीन रहते हैं। इच्छा पूरी करने की तो बात ही छोड़ दो। वो तो उनके लिए तो राधा की हर इच्छा एक आदेश के समान होता है। इसमें ऐसा मादनाख्य भाव कोई अलग से भाव नहीं कि वो गए तो श्री कृष्ण क्यों नहीं जा पाए। अरे श्री कृष्ण ही तो मादन बने, जाने का क्या सवाल है। Thank you, Hiraldi. Next is a question from Vishal Gupta. यस विशाल। हाँ, राधे जी। राधे राधे। Two questions. One is, what is the difference between a gopi and a sakhi? And the second question is, the Radha Govind Gita Doha number 6383. Mahaji says, Pran Sakhi, Preshta Sakhi, Govind Radhe, Nitya Sakhi, Kramasha Shresh Batade. So, what is the meaning of this Doha? ये सब गोपियों के स्थिर हैं, जो नित्य सखी है, राधा, ये ललिता विशाखा आदि, इन्हीं को अष्टमहासखी भी कहते हैं। ये श्री राधा की कायव्यूह स्वरूपा हैं। यानी जो श्री राधा रानी के प्रेम का आदर्श है, तत्सुख सुखित्वम, तो समझिए उसी का वो शरीर रूप है। क्योंकि वो उसका मतलब क्या है, तत्सुख सुखित्वम का मतलब क्या है, ये जानना है तो गोपियों के व्यवहार को देखो, वो क्या कर रही हैं, बस उसी का नाम तत्सुख सुखित्वम है। फिर उसके बाद उनकी और भी सखियां हैं जो उनके अंडर में है, प्राण सखी आदि, वो सब अन्य सखियां हैं। ये सभी, ये जो अष्टमहासखियां हैं, इनके अनुगत रहती हैं, और इनको अलग अलग प्रकार की सेवा प्राप्त होती है। तो कोई कुंज तक जा सकती हैं, कोई निकुंज तक जा सकती हैं। वैसे तो निकुंज तक जाने वाली तो अष्टमहासखियां ही हैं, लेकिन इनकी कृपा से इनको कहीं छोटी मोटी सेवा दूर की मिल जाती है। तो ये सखियां हैं सभी, और इनकी सेवा अलग अलग है, उस हिसाब से इनके नाम है। और सर्वोच्च सखियां तो अष्टमहासखी है, नित्य सखी है, श्री राधा रानी की कायव्यूह स्वरूपा है। दीदी, इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि जैसे प्राण सखी, प्रेष्ठ सखी, गोविंद राधे, नित्य सखी, क्रमशः श्रेष्ठ बता दे, इन ऑर्डर श्रेष्ठनेस, मतलब कि प्राण सखी से भी ज्यादा श्रेष्ठ नित्य वो सखी है। सेवा के से जो प्रेष्ठ सखी हैं, उनको निकुंज के आसपास की सेवा भी प्राप्त हो जाती है। और जो प्राण सखी है, अब जो उसके नीचे सखियां हैं, तो नित्य उनको सखी, और थोड़े दूर की सेवा प्राप्त होती है। इस सेवा के हिसाब से और उनकी जो शरणागति है सखियों के प्रति, श्री राधा रानी के प्रति, उसके हिसाब से उनकी श्रेणियां अलग अलग की गई हैं, किंतु हैं तो सब ये महाराष्ट्र की अधिकारिणी गोपियां। उनकी जैसे अब जितनी भी सखियां रहती हैं उनके अंडर में, गोपियों के ये जो अष्टमा सखियां हैं, उनको मंजरी कहते हैं। तो इनकी सेवाएं हैं, अलग अलग सेवाओं के हिसाब से इनको श्रेष्ठ बताया गया है। बहुत डिटेल में इस विषय में कि उनकी क्या सेवाएं होती हैं,
महाराज जी ने अच्छा कहीं प्रवचन दिया नहीं है। अच्छा। तो और ये वैसे तो अच्छा इधर उधर पढ़ के हम बता सकते, उससे का कोई फायदा नहीं है। हमें तो अच्छा केवल तो ये समझना है कि हमें इन गोपियों की चरण धूल चाहिए, और ये केवल हमें उस गुरु के कृपा से ही मिल सकती है जो गोपी प्रेम तक पहुंच चुका है, या स्वयं किसी गोपी का अवतार है, श्री राधा का अवतार है। सौभाग्य से ये प्रिविलेज हम लोग को मिल चुकी है। हमारा तो भाई इतना ही है कि जितना महाराज जी हमें करने को कह रहे हैं, ये काम यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत। हम महापुरुषों की हर वाणी का पालन नहीं कर सकते। जो हमारे स्तर की बातें हैं वो महाराज जी ने हमसे करने के लिए कही है। तो अभी तो हमें केवल इतना ही करना है कि महाराज जी के वचनों पर ही अखंड विश्वास करके वो जो हमें कह रहे हैं करने को हम करते जाएं। हम इस चक्कर में ना पड़े कि अष्ट महासखियों में वो प्राण सखी कौन है, मंजरी कौन है, नित्य सखी कौन है, कोई भी होंगी, हमारे तो महाराज जी हैं सब कुछ। अच्छा तो वे स्वयं श्री राधा अवतार है, हमें और किसी से क्या लेना देना है। हाँ ठीक है दीदी। ओके दीदी। थैंक यू भैया। दीदी हमें एक क्वेश्चन आया है। आपने बताया कि महारास में श्री कृष्ण गोपियों की भावानुसार परछाई की भांति नृत्य कर रहे थे, किंतु आपने यह भी बताया कि गोपियों की अपने सुख के लिए कोई इच्छा नहीं होती। तो फिर ये दोनों बातें किस प्रकार से ठीक हैं? ये बात तो सर्वविदित है ही कि वो गोपियां जो महाराज तक पहुंची तो केवल श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी रहती थी, और उनकी अपनी पर्सनल कोई इच्छा अलग से नहीं होती थी। जिसमें श्री कृष्ण सुखी है वही उनकी इच्छा बनती थी। इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि गोपियों की ये इच्छा ही कभी नहीं होती थी कि वो उनका दर्शन करें, स्पर्श पाएं, उनका प्रेम पाएं। ऐसा नहीं था। ये संभोग इच्छा जो समर्थारति या साधारणी रति वालों में थी, समर्थारति वालों में भी जो इच्छा थी श्याम सुंदर के दर्शन स्पर्शन आदि की, उससे हजारों गुना अधिक तीव्र इच्छा इन गोपियों की थी। लेकिन इनकी इच्छा तादात्म्य भाव से थी, तादात्म्य भाव से, यानी कोई उनकी अलग से इच्छा नहीं होती थी। जैसे गोपी जो समर्था रति की गोपियां थी, स्त्रियां थी, तो इनके मन में तो ये भाव आया था ना कि मैं इनकी पत्नी हूं, तो उनके अपने सुख की अलग से इच्छा होती थी। गोपियों ने अपनी समस्त इच्छाओं को, इनकी इच्छा होती है, दर्शन स्पर्श आदि की इच्छा है, उनमें बहुत है। यदि गोपियों में इच्छा ही ना हो तो हम नास्तिकों में और गोपियों में अंतर क्या रह जाएगा। नास्तिकों की भी कोई इच्छा नहीं है श्री कृष्ण के दर्शन स्पर्श आदि की, और गोपियों में भी नहीं है, तो हम तो गोपी के स्तर पे पहुंच गए फिर तो। नहीं, उनमें है और बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। उन्हें जब सुख मिले बस तब वो हमें सुख दे, दर्शन का, अपने स्पर्श का, सब कुछ का वो सुख दे। इसीलिए क्योंकि गोपियों ने जितने प्रकार के बंधन थे, देह धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म, जितने तरह के थे वो सब उन्होंने छोड़ दी, किसी की परवाह नहीं की। लोगों ने डराया है, तुम वेद धर्म का पालन नहीं कर रही हो, जानते हो तुम्हें नरक मिलेगा। नरक वरक क्या होता है, हमारे श्याम सुंदर को सुख मिलेगा तो नरक वरक क्या चीज है। आप लोगों ने बहुत बार भागवत का वो आख्यान सुनाई है कि जब भगवान ने चरण रज अपने माथे पे लगाने के लिए मांगी थी तो केवल गोपियां ही थी जो एकदम तैयार हो गई चरण रज देने के लिए। नारद जी ने कहा, अरे अरे तुमको पता नहीं तुम किसके लिए दे रही हो,
जानती हो श्री कृष्ण कौन है, क्या परिणाम होगा इसका? गोपियों का इस समय लेक्चर का टाइम नहीं, सब पता है हमको। यही कहना चाहते हो ना कि अगर हमने दे दी चरण रज माथे पे श्री कृष्ण के लगाने के लिए, तो हमको कल को नरक में सड़ना पड़ेगा? नारद जी, अरे हम बहुत बार नरक गए हैं, एक बार श्याम सुंदर के सुख के लिए अगर हमको वहां जाना पड़ेगा तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो उन्होंने स्वीकार किया दुख को भी उनके सुख के लिए। किसी ने कहा अरे तुम बदनाम हो जाओगे, लोग तुम्हें उल्टा कहेंगे, करप्टेड कहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तुम क्यों भाग रहे हो कृष्ण के पीछे? उन्होंने कहा हमें परवाह नहीं, को कहो कुलटा कुलीन कुलीन, कहो को कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हो, कैसो नरलोक परलोक बरलोकन में लीनी, मैं अलीक लीक लोकन ते न्यारी हो, घर जाओ बन जाओ देव गुर जन जाओ, प्राण किमि जाओ टेक टरती नटारी हो, वृंदावन वारी बनवारी की मुकुटवारी, पीत पटवारी वही मूर्ति पेवारी हो। वो तो केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए। तो जब श्री कृष्ण जानते हैं कि गोपियां इतना प्यार करती हैं कि मेरे सुख के लिए इन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, तो श्री कृष्ण उन्हें कुछ देना चाहते हैं। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गोपियां इतना हमसे प्रेम करती हैं तो वो भी उन्हें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन क्या दें? उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा उद्धव जी से, न पारे हम निरवध्य संयुजाम, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वा, यामा भजन दुर्जर ग्रेह श्रृंखला, संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। हम उन्हें क्या दें? अगर हम देवताओं की उम्र लेकर भी गोपियों के ऋण से उऋण होना चाहें तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनकी कोई इच्छा ही नहीं। कोई मोक्ष चाहता है, कोई दर्शन चाहता है, कोई स्पर्श चाहता है, कोई कुछ चाहता है, उनको मैं दे देता हूँ, दे के छुट्टी। लेकिन ये तो कुछ चाहती नहीं, और अगर कुछ चाहती है तो मेरा सुख। तो इन्हें सुखी करने के लिए मुझे अपने आप को सुखी करना पड़ता है, तो मेरा ऋण तो और बढ़ता ही चला जाता है इनके प्रति। तो गोपियों ने भगवान के प्रेम में ही, प्रेम को ही पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया, इसलिए भगवान ने उनको वो प्रेम दिया। तो क्या किया उन्होंने? देखो, भगवान के मन नहीं होता। सबसे पहले उन्होंने अपना मनस चक्रे, पहले ही श्लोक में, दशम स्कंद के 29वें अध्याय के पहले ही श्लोक में आता है, भगवान पिता रात्रि श्रद्धोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनस चक्रे योग माया मुपाश्रिता, अपना मन बनाया। और फिर क्या किया? उसके बाद उन्होंने जब गोपियों को बुलाया वेणु बजा के, आ गई सब गोपियां, तो उन्होंने अपने मन में काम को उत्पन्न किया। उत्पन्न किया कौन सा? ये काम आप साधारण काम मत समझिएगा। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीवी स्तनाल बन नर्म नखाग्र पातई, फैल्यावलोक हसितैर ब्रिज सुंदरीणाम उत्तम भयन, रतिपतिम मनयान चकार रमयान चकार। उन्होंने अपने अंदर काम को, वो काम कौन सा है? देखिए, प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथम भागवत में लिखा है कि जो प्रेम है, ये निष्काम, परम निष्काम गोपियों का प्रेम, इसी का नाम काम था। बाद में लोगों ने सांसारिक अर्थ में इसका प्रयोग कर दिया, और अब उसका प्रयोग लस्ट के रूप में, वासना के रूप में प्रयुक्त होता है। किंतु काम शब्द का वास्तविक अर्थ है प्रेम, वो गोपियों वाला परम निष्काम प्रेम। तो रमयान चकार, उनके साथ रमण करने की इच्छा पैदा की। जब उन्होंने अपनी इच्छा पैदा कर ली, वो काम करने की, प्रेम करने की इच्छा पैदा कर ली, बस तो गोपियों में भी वो भावना उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनको तो श्री कृष्ण के सुख में सुखी रहना है। तो अगर श्री कृष्ण प्रेम चाह रहे हैं, उनके मन में अगर प्रेम भावना उत्पन्न हो गई, तो गोपियों के मन में भी उत्पन्न हो गई।
अब गोपियां जैसा जैसा व्यवहार कर रही हैं प्रेम में परिप्लुत होकर, जैसे जैसे उनके एक्शन हो रहे हैं, जैसे जैसे उनके हाव भाव हो रहे हैं, श्री कृष्ण परछाई के भांति उन्हीं के समान उसी प्रकार से एक्शन करते हुए, उसी प्रकार के हाव भावों को प्रकट करते हुए उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, उनकी हर इच्छा को पूरी कर रहे हैं। यानी स्वयं पहले वो उनकी इच्छा बने और फिर उनके मन में वो इच्छा क्रिएट की और फिर उनके साथ में व्यवहार किया, क्योंकि उन्हें कुछ देना है। गोपियों के मन में प्रेम की तो पराकाष्ठा की भावना थी, ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं थी, प्रेम की थी, लेकिन उनकी तादात्म्य भाव से है। क्योंकि ये समर्थार्थी का अर्थ ही यही है कि रत्या तादात्म्य मापन्नाह स समर्था इति मन्यते। जो लीलमणि ने लिखा है कि तादात्म्य भाव, उनकी इच्छा है तो ठीक है, अपनी उनकी कोई इच्छा नहीं है, केवल यही इसका तात्पर्य है। Thank you, Didi ji. Next question is from Gayatri. Please unmute yourself and ask the question. राधे राधे दीदी, प्रणाम। राधे राधे। दीदी मेरा क्वेश्चन ना प्रैक्टिकल लाइफ में उसके बारे में है। जैसे अभी प्रारब्ध ठीक नहीं चल रहा हो तो सुबह मतलब सुनते हैं लेक्चर, एक दो बातें हैं। एक तो लेक्चर सुनते वक्त इतना अच्छा लगता है, मन उसमें इतना अच्छा लगता है, जब फिर उसको बंद करके हमको वापस मटेरियल वर्ल्ड में जब आना होता है तब बहुत इरिटेशन होता है एक तो। दूसरी बात यह है कि दिन भर मतलब पहले जितना भी संकल्प कर लूं कि मैं मतलब डिस्टर्ब नहीं होना है थ्रू आउट द डे, पर सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस टाइम महाराज जी क्या सोचते होंगे, महाराज जी क्या मेरे बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, मैं क्या करूं, मैं कि उनके प्यार का वो पात्र बनूं। जब आप महाराज जी के प्रवचन को सुनती हैं तो सुना आपने, और सुनने के बाद आप संसार में गई तो आपको फिर इरिटेशन हुआ। इसके मतलब ये कि आपने कान से तो सुना, हृदय तक नहीं पहुंचाया। उसको हृदय तक पहुंचाइए। देखिए, मैं जो सजेस्ट करती हूँ, लेक्चर सुनने का एक तरीका है। वो क्या है, जब भी आप महाराज जी का लेक्चर सुनिए तो आप ऐसे मत सुनिए। मैंने तो यही देखा है अभी तक, अधिकांश सत्संगी लोग जैसे वो काम करते हैं ना तो कोई गाना वाना लगा देते हैं, उनका मन लगा रहे हैं। ऐसे ही महाराज जी का लेक्चर लगा देते हैं लोग, अपना काम भी करते जा रहे हैं घर का और महाराज जी का लेक्चर भी सुनते आ रहे हैं। ऐसा लेक्चर सुनने का कोई विशेष लाभ नहीं होता। लेक्चर सुनने का, अगर आपको कुछ गेन करने के लिए, अपने को और आगे बढ़ाने के लिए लेक्चर सुनना है, तो आप जब आप सब काम से निश्चिंत हैं, आप तब लेक्चर सुनिए। साथ में एक नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेकर बैठिए, और महाराज जी ने क्या इंपॉर्टेंट बात बताई जो आपकी कमी है, या जो इंपॉर्टेंट बात है जो हमें करनी है, उसको नोट करिए। तो आज महाराज जी ने ये बात इंपॉर्टेंट बताई, ये हमें करना है, कल से अभ्यास शुरू करो इसका। नहीं हो रहा है तो रात में फिर सोचो कि हमने नहीं किया, हमें करना है। उसके पहले दूसरा लेक्चर मत सुनो जब तक एक बात आपकी पकड़ में ना आ जाए। बार बार उसको सुनिए, बार बार अपने को डांटिए कि हम एक बात भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपने गुरु की, तो उसका अभ्यास करिए। जैसे अगर आपको कोई कुछ कह देता है, थोड़ा जोर से बोल देता है, आपको गुस्सा आ जाता है। श्री महाराज जी ने कहा था कि हमें गुस्सा अगर आ रहा है, ये हमारे अज्ञानता का पहला प्रमाण है। क्योंकि अगर आपको कोई कह देता है कि आप गाय हो, तो आप गाय की तरह तो नहीं चलने लग जाते, गाय की तरह तो नहीं बोलने लग जाते, हंस देते हैं। इसको मुझे ये देखो क्या बोल रहा है, कि गाय कह रहा है। तो अगर दूसरा व्यक्ति कुछ आपको कह रहा है और आप समझते हैं आप ऐसे नहीं हैं, तो आपको हंस देना चाहिए उसके ऊपर। इसको हम ऐसे दिख रहे होंगे। दूसरी बात, अगर हमें कोई कहता है तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो है नहीं।
है ही है, हम सब हैं। तो आप उसको हंस के बोलिए तो हमें भी पता है कि इतना, हमें और कुछ बताओ, तो भी खिसिया जाएगा और आपको भी लगेगा भाई ठीक ही तो कह रहा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो गुस्सा आने से बहुत नुकसान होता है, शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी, सब तरह का लॉस होता है, क्योंकि तुरंत माइंड हमारा इम्बैलेंस हो गया। जहां हमें गुस्सा आया, माइंड का बैलेंस खराब, खून जलने लगा हमारा, आध्यात्मिक जो हमारा चिंतन था वो समाप्त हुआ, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, जैसे कितने तरह का लॉस होता है। तो इरिटेशन होना नहीं चाहिए, ये हमें सोच लेना है, और किसी के व्यवहार से इरिटेट नहीं होना है हमें। अपना काम करो, कोई कुछ कह रहा है, गलत कह रहा है, इग्नोर कर दो। कोशिश, अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। और मन में श्री महाराज जी कहते हैं ना, राधे राधे बोलते रहो। सोचो महाराज जी हमारे साथ हैं, बस महाराज जी ने स्पीच में बहुत अच्छी तरह बड़े जोरदार शब्दों में कहा था, एक तुम और एक तुम्हारा बाप, ये सदा हमेशा अंदर है, ये याद रखो। जैसे बच्चे कितनी भी शैतानी कर रहे हैं और टीचर आ गए तो बच्चे सब सीरियस हो जाते हैं। तो हमें अगर पता हमारा मास्टर, हमारा गुरु, हमारा जो सबसे अधिक प्रिय, हमसे प्रेम करने वाला, वो हमारे साथ है हर समय, तो हम कुछ गलती नहीं करेंगे। उनका ध्यान, यानी सारी बात घूम फिर के आती, साधना को बढ़ाओ, साधना वही करना है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। वेलकम। Didi, thank you, Gayatri Didi, for asking. Next is Sarita. We can't hear you, Sarita. Yeah, can you hear me now? Yes, thank you. Yeah, Didi, Radhe Radhe Didi. Sarita Didi's video is off. कोई और को ले आओ। Didi, you can ask your question, Sarita Didi. हाँ हाँ, But I think I'll just put it in a way. Sarita, your audio is very choppy. Do you mind writing it up in the chat and I can ask? Yeah, I can do that. Thank you so much. Yogendra Bhaiya, you're next. राधे राधे। राधे राधे। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है दीदी, ऑन किया वीडियो अभी तक? बहुत ठीक है, बोलिए। दीदी दीदी जैसे गृहस्थ में रहते हुए हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जो नौकरी करते हैं, इस भाव से कि सारा धन हम श्री महाराज जी को देंगे और अपना जीवन वहीं बिता देते हैं, और एक दूसरा व्यक्ति है वो आश्रम में आकर के फिर सेवा करके और श्री महाराज जी की सेवा करता है, तो दोनों में क्या फर्क है? लेकिन मन की स्थिति सेम है, जो बाहर है वही अंदर है, तो क्या फर्क है? ये सेवा चाहे आप घर में रह के करिए और चाहे आप मनगढ़ में रहकर करिए, सेवा भावना शुद्ध होनी चाहिए। अगर हम सेवा कर रहे हैं और अहंकार बढ़ रहा है, उसने तो नहीं की, उसने मैंने तो इतनी सेवा, मेरी इतनी सेवा है, ये भावना अगर है तो सेवा का फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप घर पे भी रहकर कुछ भी कर रहे हैं, चाहे घर पे रह के कर रहे हैं चाहे वहां रह के कर रहे हैं, दिखावा नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, बस ये सोच के हमारा कुछ है ही नहीं। जब हमने अपने को समर्पित कर दिया गुरु को, तो हमारे हम ही नहीं रहे, तो हमारा धन कैसे हमारा है? तो अगर हम धन जो भी बचा सकते हैं अपने शरीर के लिए, हमें जितना खर्च करना जरूरी है हम उतना खर्च कर रहे हैं, और बाकी हम अपने गुरु को दे रहे हैं, तो हम गुरु पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा सेवा नहीं है, वो तो हमें उनका ही है, उनको देना ही देना है उनको हमें। इस विशुद्ध भावना से सेवा कैसे भी की जाए, चाहे आश्रम में रह के करो चाहे घर में रह के करो, वो तो उचित है।
और अगर अहंकार युक्त सेवा है उसमें तो गड़बड़ है, वो तामसी सेवा हो गई। हेलो, कहाँ आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है? Okay. Next question, Smita. Please unmute yourself and ask. Radhe Radhe Didi, I'm trying to put enable the camera. I don't know what's happening. Okay. कैमरा ऑन नहीं हो रहा, पता नहीं. लेट मी ट्राई. मेरी आवाज तो आ रही है ना दीदी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। बस बहुत है दीदी. राधे राधे. मैंने बहुत सुंदर एक गुलाब आपके लिए रखा था कि मैं दिखाऊंगी दीदी को, तो जब मौका मिलेगा तो मैं दिखा दूंगी इस दौरान. बट मेरा प्रश्न है दीदी, बहुत छोटा सा है, जैसे नवधा भक्ति के ऊपर. नवधा भक्ति में आत्म निवेदन है एक भक्ति, और क्या आत्मनिवेदन शरणागति को ही कहते हैं या शरणागति निहित है आत्मनिवेदन में? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाले दीदी. नवधा भक्ति बताई गई है ना जी. इसमें प्रमुखतम, जैसा कि श्री महाराज जी ने अनेक बार बताया है, वो है तो हमारा स्मरण है, और आत्मनिवेदन जिन्होंने बताया वो तो इसका मतलब तो आत्मसमर्पण है, जो मैं अभी बता रही थी ना। जी जी. कि हमें अपने को समर्पित कर देना है, नहीं हमारा कुछ भी नहीं है। देखिए शरणागत हमें होना है ना, शरीर को, तन मन धन लोग कहते हैं ना जी. इन तीन को समर्पित करना है। तो तन मन धन को हमने समर्पित कर दिया और अपने आप को तो किया नहीं। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते तब तक हम की भावना, मैंने ये किया जी. रहेगी, और फिर वो अहंकारा हो गया तो सेवा गड़बड़ा गई। से अपने को समर्पित, हमें आत्मनिवेदन माने अपने को, हम ही है आपके, तो ये भावना ही नहीं आ सकती ये हम आपको दे रहे हैं, ये आप, अरे सब है ही हमारा, तुम क्या दे रहे हो? जब तुमने अपने आप को ही दे दिया तो सब कुछ तुम्हारा हमारा है, तुम भी हमारे हो, तो सब कुछ हमारा है। या आत्मनिवेदन का यही मतलब है कि आत्मसमर्पण। क्लियर हुआ या नहीं? I guess हो गया दीदी. दीदी गायत्री दीदी का एक और क्वेश्चन है. हाँ हाँ दीदी, जैसे गोलोक में अलग अलग स्तर के ही भी सखियां हैं और गोपियां हैं, तो वहां पे भी साधना होती है, वहां पे भी स्तर चेंज हो सकता है? जैसे मतलब जिस भाव में है भाव चेंज होता है वहां पे भी? नहीं, जो लोग गोपी प्रेम में हैं उनमें सुधार हो सकता है, जो अलग अलग सेवा भावना के अनुसार हो सकता है। जैसे कि एक महाराज जी ने भी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया अपने गोपी, ये राधा गोविंद गीत में लीला लिखी है कि एक गोपी थी जिसके मन में आया कि श्री कृष्ण मुझे श्वेत वस्त्रों में, श्वेत श्रृंगार में देखकर उन्हें अधिक सुख मिलता है। तो उसने पूरा अपना सफेद श्रृंगार किया, सफेद फूलों से और सफेद कपड़ों से, सब चीज से बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया, और हाथ में सफेद कमल लेके वो ठाकुर जी के पास गई कि वो खुश हो जाएंगे। देख ठाकुर जी कुंज में सो रहे थे, तो उसने कहा कि तो मैंने सारा सफेद फूलों का श्रृंगार किया है, तो सो रहे हैं, तो जब तक उठेंगे तो मुरझा जाएंगे फूल, तो उन्हें कैसे सुख मिलेगा? तो हाथ में जो कमल था वो ऐसे ऐसे घुमा के उनके चारों तरफ घूमने लगी, इसका पराग उनके मुख पर पड़ेगा तो उनकी निद्रा खुल जाएगी, वो मुझे देख लेंगे तो उन्हें सुख मिल जाएगा। इतने में श्री राधा आ गई। तो श्री राधा ने पूछा, सखी तू ये क्या कर रही है? तो उसने सारी बात बताई। तो श्री राधा ने कहा, रे ये तो निष्कामता के विरुद्ध है। बोले क्यों? मैंने तो उनके ही सुख के लिए किया है, उन्हें सुख मिलता है श्वेत वस्त्रों में देखकर, मुझे
खुश होते हैं इसलिए मैंने किया है। बोले नहीं, अभी उन्हें सोने में सुख मिल रहा है, तो उनको इस प्रकार से जगाना, ये उनके सुख में बाधा पहुंचाना है। लेकिन फिर तो मेरे सब ये सूख जाएंगे फूल वूल, तो फिर दोबारा श्रृंगार करके आना। चाहे तुझे 100 बार 1000 बार श्रृंगार करके आना पड़े उनके सुख के लिए, तो आओ, लेकिन वो जो उनको प्रेजेंटली जो सुख मिल रहा है उसमें बाधा मत पहुंचाओ। यही निष्कामता है। तो क्यों कहा? ताकि उसमें सुधार हो जाए। मुझे निष्कामता में थोड़ी सी कमी रह गई है, वो पूरी हो जाए। तो जो निष्काम गोपियां हैं ऑलरेडी, जो गोपियों के अनुगत है, तो उनमें हो सकता है। जैसे एक एक प्रसंग आता है ना, जहाँ पे जैसे एक विरजा का प्रसंग आता है, जहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि जैसे गोलोक में ही एक दिन जब कृष्ण को देखा तो प्यार हो गया। ऐसे मतलब ऑलरेडी गोलोक में है तो पहले ही प्यार हो जाना चाहिए था। नहीं, जो लीलाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं ना, ये तो जब भगवान का अवतार यहाँ हुआ था उस समय की लीलाएं हैं। वहां प्यार हो जाने का कोई तो सवाल ही नहीं उठता ना। गोलोक में तो होते ही वो है जिनका प्यार है। ये तो यहाँ जो लीलाएं हुई थी, यद्यपि इसमें भी जो अधिकारिणी गोपियां थी, जिनको ऑलरेडी सब कुछ प्राप्त था, अंतःकरण शुद्ध हो चुका था, उनका ही प्यार हुआ श्री कृष्ण से। वही इन्होंने एक बार देखा या उनका शब्द सुना या मुरली सुनी या कुछ भी, तो एकदम से उनका प्यार हो गया। ये मायाबद्ध जीवों का थोड़े हो जाएगा ऐसे प्यार। जैसे वो एक गोलोक में ये स्टोरी है ना, जब जैसे राधा रानी के ऊपर वो कर्स कर देते हैं कि फिर उसकी वजह से ही राधा रानी का अवतार उन्होंने लिया अपने भक्त का वो बात रखने के लिए। तो उसका पहले का एक प्रसंग है जहाँ पे कि एक विरजा नाम की गोपी थी, और जिसको उसमें लिखा है कि विरजा को प्यार हो गया कृष्ण से। गोलोक की ही बात आती है उसमें। लिखा कि ये गोलोक की बात है जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण में यहाँ ऐसे। से आप पढ़ के आ जाते हैं, हमें तो मालूम नहीं। हमने तो केवल महाजी का प्रेम रस सिद्धांत सुना है और उनकी फिलॉसफी को सुना है। जहाँ तक मुझे पता है, जो लीलाएं गाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, ये तो सभी लीलाएं मृत्युलोक की ही है। जब वृंदावन, दिव्य वृंदावन सहित भगवान इस वृंदावन में उतर कर आए थे, उस समय की ये लीलाएं हैं। वहां पर तो इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है, जहाँ तक मैं मेरी जानती समझ में गलती हो हूँ। और आपने क्या पढ़ा है कहाँ पर, मुझे नहीं पता। Okay. Since we have other questions, Sarita, are you, can you speak now? Please unmute yourself and ask the question, Sarita. Can you hear me now? Yes, we can. Thank you. Okay, thank you so much. Devi Radhe Radhe Devi Pranam. I just wanted to ask about the behavior, how to deal with the behavior of non-satsangi people towards a satsangi, who try to judge you or who try to ignore you or insult you in those negative. So once they start doing that, I kind of go into negative symptoms, which I know is not a correct behavior as per Maharaj's philosophy. तो महाराज जी तो कहते हैं कि जो निंदा करते हैं उसको भी Sarita, do you mind if I ask the question? Yeah, that's fine. Okay. How to deal with negativity about people who are not satsangi? Okay. How to deal with negativity about people who are not satsangi, and we need to deal with them all day long. I do fulfill my duty towards them and try to see Shri Krishna in them. Still, I keep thinking about them in a negative way, especially when I'm not given importance or I'm ignored, or when they make fun of my satsang, etc. I do negative chintan about that. Sometimes I start telling them,
Shri Maharaj's philosophy too. I know all that is incorrect behavior, but practically it's very hard to do. How should I proceed? In fact, it's not necessary to talk about the philosophy of those people who are not the satsangis, because they won't listen to you. And half answer has been given already of this question, that when you are working and you are working with non-satsangis, their behavior could be negative for you. But as I said before, always think that it is also the grace in his disguise. Probably Shri Maharaj wants to increase my my humbleness and forbearance. That's why he is doing that. Think that Maharaj is always with me. This, whatever this person is doing, Maharaj is seeing that as well. If this person is wrong, naturally he cannot do anything wrong with me. He cannot spoil anything in my career, and Maharaj would help me. So the best thing for a devotee is always in negative situations also think about the grace of God. Because as Kunti ji said, Vipada santu na shashvat tatra tatra jagat guru bhavato darshanam yatsyad apunar bhava darshanam. She is asking for this boon. Give me the problems, give me the distress, the miseries on each and every step of my life so that I can remember you. So we have to do the same thing, the sadhana. We have to think about Shri Maharaj Ji all the time. That's what Shri Maharaj Ji say. That all the time inside your mind say Radhe Radhe. Feel the presence of Hari and Guru. Then you can easily bear all these things. Because you know Maharaj Ji is with me. He is seeing everything. If you are having something which is very pleasant, then if any negative thing comes up, then you don't mind it. Like if you're very happy at any time and you're laughing and you're sitting with your friends and somebody comes, oh, listen, that person was saying this thing for you. Oh, then you will ignore it because you are very happy at this time. To feel the presence of Guru and God, and we have to know when you are going in the negative situations, you're going to your work and people are behaving with you, which is not pleasant for you, and still you have to think that this is the grace of my Guru, this is the grace of God. Only that thing, that kind of thinking can give you peace of mind. Otherwise, you will always be miserable, and that way you cannot do your work also very well. Do your work honestly, feeling that Maharaj is with you, God is seeing me, and think that these people are just taking test. Maharaj is taking test of myself through these people. That's all. Thank you for the question. Next is Raghav. राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी जी, मैं आपसे पहले भी एक बार मिला हूँ, उसमें मैंने श्री कृष्ण के रूप ध्यान के बारे में बात की थी। तो महाराज जी ने माधुर्य भाव की भक्ति बताई है, लेकिन मैं श्री कृष्ण को सखा के रूप में ज़्यादा मतलब रिलेट कर पाता हूँ। माधुर्य भाव, स्त्री का भाव वाली भक्ति इतनी नहीं होती है। तो क्या ऐसे भक्ति करना जैसे अर्जुन करते थे, या वो श्री कृष्ण को सखा रूप में मानते थे? ये तो आप किसी भी भाव से कर सकते हैं। महाराज जी ने पांचों भाव की भक्ति बताई भी है और पांचों भाव के पद भी लिखे। पांचों भाव की भक्ति में कैसी भावना बनानी है वगैरह भी महाराज जी ने डिस्क्राइब किया है अपनी पुस्तकों में। तो किसी भी भाव से भक्ति करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको महाराज का रस चाहिए तो सख्य भाव की भक्ति करने से आपको वात्सल्य का भी रस नहीं मिलेगा, माधुर्य का तो सवाल ही कुछ नहीं, साधारणी रति का भी नहीं मिलेगा, माधुर्य का तो उसका तो सवाल ही नहीं है। तो गलत नहीं है, अगर आप सख्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो गलत नहीं है, उसी को आप बढ़ाते जाओ। देखो जो सखा भाव वाले लोग होते हैं ना,
उनका श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव इतना बढ़ जाता है कि वो सब में श्री कृष्ण को देखते हैं, सब में उन्हें सखा का ही रूप दिखाई देता है। हमें वो प्रेम बढ़ाना है, सखा है श्री कृष्ण हमारे, वो प्रेम, बस वही चिंतन अपना बढ़ाते जाओ। बस ये सोच लो कि वहां बस सिर्फ महाभाव, आप वो महाराज का रस नहीं मिलेगा, बाकी तो क्यों नहीं मिलेंगे भगवान। लेकिन हम वो पढ़े थे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गोपी के रूप में परिणित कर दिया था। तो मतलब अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने अर्जुनी गोपी बनाकर रास का रस प्रदान किया था। तो मतलब अगर कोई जीव प्रयास करे तो महाराज जी उसको धीरे धीरे हेल्प करके उस लेवल तक। श्योर, क्यों नहीं करते। अगर आपकी इच्छा ये है कि हम गोपी प्रेम को प्राप्त करें और अभी आपका सखा भाव बन रहा है और आप महाराज जी के शरणागत हैं और उनसे चाहते हैं कि मेरा ये भाव बन रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा भी गोपी प्रेम बढ़े, तो जरूर महाराज जी हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उनका तो काम ही है ये। और एक और प्रश्न, बातें तो हम लोग कर रहे हैं, ये लक्ष्य वैसे बहुत ऊंचा है। महाराज जी ने कहा कि ये जो लक्ष्य है वो हजारों जन्मों में सिद्ध होता है, तो क्या हमें अनंत जन्मों तक महाराज जी? अरे लाखों जन्म तो हमारे ऑलरेडी बीत चुके हैं, हजार और बीत जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। अगर हमने नहीं की भक्ति तब भी तो बीतेंगे लाखों जन्म। अगर भक्ति के साथ बीत गए तो हर जन्म में कुछ तो प्रोग्रेस होती जाएगी ना। अगर आप साधना कर रहे हैं और क्या पता किसी जन्म में आप बहुत साधना कर रहे हैं या आपको चुटकियों में ये बात समझ में आ जाए कि गुरु ने क्या कहा है बस हम उसका पालन कर लें, तो एक जन्म में भी हो सकती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। गीता में लिखा है यूं एक क्षण में भी किसी को भगवत प्राप्ति होती, समझ में आ जाए कि गुरु, बस गुरु के शरणागत होके रहना है। जो वो कह रहे हैं हमें जरा भी लेकिन मगर किंतु परंतु नहीं लगाना है, जैसे वो कह रहे हैं हमें वही करना है। बस एक जन्म में बात बन सकती है। तो महाराज जी हम लोग को अनंत जन्मों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। महाराज जी तो करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने आपको अपना लिया है। हम छोड़ सकते हैं, छोड़ते रहते हैं, वो कैसे छोड़ देंगे। वो तो हमें जब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा देंगे तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब आप निश्चिंत रहिए, तो भगवत प्राप्ति करा के ही मानेंगे। अब आपके ऊपर, आप जल्दी करो कि बाद में करो, देर में करो। Thank you, Raghav Bhaiya. Next question, and this probably will be the last one, is from Gajendra Bheti. Bhaiya, please unmute yourself and ask the question. दीदी राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे भैया। दीदी महाराज जी की कृपा से आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए तो पहली बात तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दीदी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग जब प्रेम रस मदिरा के पदों को गाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ जगहों पर हम महाराज जी का नाम लेकर भी क्या उस पदों को गा सकते हैं? जैसे बिगड़े हुए देहू बनाए किशोरी मोरी है, तो हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि किशोरी जी को तो देखा नहीं है, तो हम बिगड़ी देहू बनाए कृपालु मोरी, क्या ऐसा गाना कोई अपराध तो नहीं है? जैसे जगन्नाथ मिश्र जी ने वहां मेम की जगह गदा मेम कर दिया था। शब्दों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किशोरी मोरी भी बोल रहे हैं जी और महाराज जी का ध्यान कर रहे हैं, हाँ वो तो देखिए अब तो आज के सभी ब्रज रसिकों ने भी मान लिया है कि श्री महाराज जी राधा के अवतार हैं। हाँ दीदी, प्रेम के अवतार हैं, तो हमें मानने में क्या प्रॉब्लम है। और आप मानते भी हैं तो भले ही आप किशोरी मोरी गाएं, क्योंकि अगर आप शब्द बदलेंगे तो गाने में थोड़ी दिक्कत होगी और खटकेगा, और इससे आपका ध्यान भी टूटेगा। वहां पर जब आप ऐड करेंगे कोई शब्द, पहली बात तो महापुरुषों के शब्दों में हेरा फेरी करने का हमें अधिकार नहीं है, और दूसरे ये है कि फिर हमें दिक्कत होगी। इसलिए ध्यान आप महाराज जी का ही करिए। अच्छा। और गाइए कुछ भी, शब्द कुछ भी बोलिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। जी, अब कोई अपराध तो नहीं है दीदी, जैसे हम अकेले में एकांत में ही गा रहे हैं तो अपने लिए साधना। भगवान क्या ये सब अपराध अपराध सब मन देखा जाता है। वहाँ मन की भावना शुद्ध होनी चाहिए, फिर ये शब्दों वगैरह से व्यवहार से अपराध कुछ नहीं होता भगवान क्या। जी जी
यही तो उनकी अकारण करुणा है। जी बहुत अकारण कृपा है। मैं तो मोबाइल में कुछ और देख रहा था, मुझे अभी दिख गया एकदम से कि दीदी का जूम पर लाइव चल रहा है, महाराज जी का प्रवचन समाप्त हुआ तो मैं मेल चेक कर रहा था तो तुरंत दिख गया। इतनी बड़ी महाराज जी की कृपा, एक एक क्षण हमारे कितना ध्यान रखते हैं। जैसे आप बताते हो कि आज भी हमारा योगक्षम हम कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज जी का कि कितनी बड़ी कृपा है, वो आज भी हम पर करना चाहते हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। जी दीदी, बस राधे इतना ही पूछना था दीदी। धन्यवाद दीदी, राधे राधे। राधे। Thank you, Gajendra Bhaiya. And thank you all for your questions. Time is running out. So I want to give you the next program. Didi ji is going to speak next week at the same time on the day of Diwali on significance of Diwali and Ammaji's descension. As you all know, that is the day Ammaji descended. So Didi ji will be speaking about that. And thank you, Didi ji, so much for all the answers. Thank you. And thank you for joining us next week as well.